پی ٹی آئی میں تبدیلی آ گئی. عمران خان کی جگہ بیرسٹر گوہر علی چیئرمین اور عمر ایوب مرکزی جنرل سیکریٹری منتخب. دونوں کا انتخاب بلا مقابلہ عمل میں آیا. چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی صدر اور حماد اظہر سیکریٹری جنرل منتخب. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا، حلیم عادل شیخ سندھ اور منیر احمد بلوچ بلوچستان کے بلا مقابلہ صدر بن گئے. پشاور میں کھلاڑیوں کے نعرے. تحریک انصاف کا آئین ہے جس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. پی ٹی آئی کے بانی رکنان اکبر ایس بابر کا انٹر پارٹی انتخابات چیلنج کرنے کا اعلان. ووٹر لسٹ تھی، نہ ہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع دیا گیا. پارٹی پہلے بھی ہائی جیک تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوا. اکبر ایس بابر کا ہدف تنقید. پاکستان کے اندر مینیپولیٹڈ، مینیجڈ، رگڈ، ڈکٹیٹڈ، سلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے. پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات پتلی تماشا کے سوا کچھ نہیں. الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی. مریم اورنگزیب نے انٹرا پارٹی انتخاب کو دھاندلا سے تعبیر کر دیا. پیپلز پارٹی کا بھی پی ٹی آئی انتخابات پر سوال. فیصل کریم کنڈی نے الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے موجودہ انٹرا پارٹی انتخابات سمیت گزشتہ 12 سال سے ہونے والے انتخابات جعلی قرار دے دیے. گوہر علی خان کے پاس تو پارٹی کی ممبرشپ کارڈ تک نہیں، کیسے چیئرمین بنا دیا گیا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ کا سوال. استحکام پاکستان پارٹی نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات ڈمی قرار دے دیے. عام انتخابات بھی ایسے ہوئے تو کیا پی ٹی آئی نتائج قبول کرے گی؟ فیاض الحسن چوہان کے بعد ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے. نواز شریف انتظامیہ کی مدد کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں، ووٹ کو عزت دیں، بے عزتی نہ کروائیں. بلاول بھٹو کا مشورہ. کچھ لوگ بادشاہ کی طرح ملک میں آ کر الیکشن کی ہوا بنانا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے. انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے. جیالے چیئرمین کا دعویٰ. 18ویں ترمیم کا مجوزہ خاتمہ صوبوں سے وسائل چھین کر اسلام آباد حوالے کرنے کے مترادف قرار دے دیا. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ٹاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دیا. پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے. پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں. نون لیگ نے بلاول بھٹو کے بیانات غیر سنجیدہ قرار دے دیے. بلاول سمجھتے ہیں کہ اس طرح پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کر لیں گے تو پورا زور لگا لیں. رانا ثناءاللہ کا چیلنج. 18ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کے الزامات واویلے کے سوا کچھ نہیں. احسن اقبال کا نامکمل ترمیم کو مکمل کرنے اور اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا اعلان. دی ہیں وہ بالکل بے معنی ہے. احسن اقبال صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے. تو ایسا اگر کوئی اور رکن کسی طرف کوئی بیان دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کا پارٹی جواب بھی دے سکتی ہے اور وضاحت بھی دے سکتی ہے. دانیال عزیز کو احسن اقبال کے خلاف بیان بازی مہنگی پڑ گئی. نون لیگ نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا. رانا ثنا کی تصدیق. 15 دن میں وضاحت طلب. شو کاز نوٹس کی پرواہ نہیں. دانیال عزیز کا لیگی رہنماؤں کو اہمیت دینے سے انکار. صرف نواز شریف سے بات کرنے کا اشارہ. رانا برادران ہیں، ان کے شو کاز نوٹس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میاں صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے لیے میں نے ہنس کے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی. تو وہ پاکستان آئے ہیں تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر انہوں نے بات کرنی ہوگی میرے ساتھ تو وہ کر سکتے ہیں ضرور.
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 7 घंटे तवील पहला इजलास। सरगोदा डिवीजन के चारों अजला से शॉर्ट लिस्ट 105 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कल रावलपिंडी डिवीजन के शॉर्ट लिस्टेड मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। तो आज तो कैफियत ये है कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकती। शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग पर वोट को इज्जत दो के बयानिए से इनहिराफ का इल्जाम। नवाज शरीफ के लाडले का तासुर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएगा। नून लीग के पसंदीदा होने के तासुर को खत्म किया जाना चाहिए। साबिक वजीर आजम का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। पॉलिसियों से इख्तिलाफ के बाइस इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक। दबाव नहीं डाला जा सकता, न ही वो जानिबदारी का मुजाहिरा करेंगे। फराइज की अदायगी और मनसिब के हल्फ की पासदारी जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस के नाम खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। सर्व मोहर लिफाफा चीफ जस्टिस को मौसूल होने से पहले दस्तावेजात मीडिया को जारी किए जाने पर हैरत का इजहार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एमक्यूएम पाकिस्तान का सियासी ताकत का मुजाहरा। जलसागाह में कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। कुछ देर बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरी वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज। चैलेंजेस से मुकम्मल बाखबर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा। सिपाही सलार ने मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए महारत में इजाफा जरूरी करार दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मौसमियाती तब्दीली को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक से तरक्की पजीर ममालिक की मदद का मुतालिबा। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा के खिलाफ साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश। उस केस में ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई सर है ना ही पैर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। पूछा जाए कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। शाह महमूद कुरैशी का बयान, आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत मेरिट पर होगा। सदारती तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा। करप्शन स्कैंडल में परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर ठेकों में किकबैक्स लेने का इल्जाम। 1 अरब 23 करोड़ रुपए के स्कैंडल में मोनिस इलाही के साबिक सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन वादा मुआफ गवाह बन गए। रेफरेंस में दावा। गाज़ा में जंग बंदी के बाद कयामत की रात। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 50 बच्चों समेत 184 फलस्तीनी शहीद। 600 जख्मी। तबाहाल अस्पतालों में जख्मियों के लिए सहूलियात का फुकदान। दहशतगर्द रियासत का गाज़ा में खान यूनिस और जबालिया के इलाकों को मुकम्मल खाली करने का अल्टीमेटम। हमास ने भी जवाब में इसराइल पर कई मिसाइल दाग दिए। अमरीका इसराइल की हिमायत में तमाम हदें पार कर गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जंग बंदी के खात्मे की जिम्मेदारियां हमास पर डाल दी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। आरजी नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की का मुतालबा। अमरीका ने गाज़ा पर हमलों के लिए इसराइल को सबसे खतरनाक 900 किलो वजनी बंकर बस्टर बम फराहम कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। यूनिसेफ ने गाजा को बच्चों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका करार दे दिया। इसराइली हमले जारी रहने की सूरत में रोजाना सैकड़ों बच्चों की शहादतों से खबरदार कर दिया। डॉन न्यूज ने बाकायदा इसको अपनी मेन स्ट्रीम गुफ्तगू का हिस्सा बनाया और वो काफ़ी तवील इस पे रिसर्च और बहस करते हैं। वो उन 30,000 जख्मियों में से कोई स्टोरी पकड़ते हैं डॉन वाले और उस ह्यूमन स्टोरी के पीछे जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। कराची की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में गाजा से मुतालिक डॉन न्यूज की कवरेज की पजीराई।
डॉन न्यूज नाजरीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही के साथ मसले के पस मंजर से भी आगाह करता रहा। तज्जियाकार आरिफ वकार का एतराफ। सिर्फ पासपोर्ट रखने वाले अफगान ही अब पाकिस्तान आ सकेंगे। बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने हिकमत अमली बता दी। बन्नू दहशतगर्द वाक़े ने यह साबित कर दिया कि अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। दहशतगर्द वाक़यात के बाद अब तस्करा रखने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं। जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अचानक नौशहरा के अस्पताल जा पहुंचे। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर इजहार बरहमी। सूरत हाल में बेहतरी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद को हलाक करने के केस में मुल्जिम अफनान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दादू में बस स्टॉप पर गैस सिलेंडर के धमाके से दुकान में आग लग गई। 10 अफराद झुलसकर जख्मी। चिनियोट का होटल भी सिलेंडर धमाकों से गूंज उठा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर को आग लग गई। गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल। कराची में दोबारा होने वाले MDK टेस्ट में फिर बेज़ाब्तगियां। डाउ यूनिवर्सिटी में होने वाला पर्चा भी आउट होने का इंकशाफ। उम्मीदवारों और वालिदैन का बैनर उठाकर टेस्ट इंतजामिया और महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के करीब शदीद धुंध के बाइस 3 गाड़ियां टकरा गईं। वैन, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर की टक्कर से 4 अफराद जान से गए, 5 शदीद जख्मी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में सिख यात्रियों से नौसरबाजी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वायरलेस और सरकारी यूनिफॉर्म बरामद कर लिया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर का तरबेला के 5वीं तौसीई और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। दोनों मंसूबों पर तामीराती काम का जायजा लिया। तरबेला में जारी पन बिजली के 4थे मंसूबे का भी मुआयना। तेजुल इस्लाम ने 10 शिकार करके न्यूजीलैंड का भरकस निकाल दिया। 332 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 181 रन पर ढेर। बांग्लादेश की कीवीज के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में पहली फतह। पीसीबी का सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी बनाने का फैसला। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने नाम वापस लिया। पाकिस्तान सुपर लीग में 3वीं ट्रेड भी मुकम्मल। क्वाइटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह के बदले इस्लामाबाद यूनाइटेड से 2 खिलाड़ी ले लिए। वसीम जूनियर और अबरार अहमद शामिल। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और न्यूजीलैंड के कोलन मिनरो भी PSL के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। नेशनल T20 कप के सुपर 8 मरहले में दिलचस्प मुकाबले। लाहौर वाइट्स ने लाहौर ब्लू, पेशावर ने कराची वाइट्स और रावलपिंडी ने फाटा को हरा दिया। कराची में इल्म अदब के खजाने बिखेरती आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 3रा रोज। गाजा में इसराइली हमलों पर सेशन में मुक़र्ररीन का फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने का मुतालबा। कई अदबी सेशंस भी नामवर शख्सियात की शिरकत।